Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here back with very important session to make you revise for the chapter of P and C, that is permutation and combination. हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे all the revision points or you can say the important tricks or you can say the important formulas to deal with the problems on permutation or combination. तो स्टार्ट करते हैं with the very basic topic from this chapter that you must know about the fundamental principle of addition. This is a very basic principle of counting जो जहां से start होती है arrangements की, and we also talk about in future the combination, right? What is the fundamental principle of addition? If you have two tasks, okay, if you have two tasks such that they can be performed independently in m and n ways respectively, मतलब जो दो टास्क हमें वो ऐसे है कि उन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, then either of the task, मतलब या तो एक टास्क या तो दोनों टास्क, either of the task can be performed in m plus n ways. This is called the fundamental principle of addition. इसका मतलब समझ में आ रहा है? हमारे पास दो काम है, काम समझो हम बोलेंगे W1 and W2, दो वर्क है हमारे पास, ये दो टास्क को परफॉर्म करना है, तो दोनों को परफॉर्म करने के लिए अपने अपने वेज है. समझो W1 के लिए m वेज है एंड W2 के लिए n वेज है, ठीक है? तो मुझे काम होना है, तो या तो काम वो W1 का हुआ या तो W2 से हुआ, मतलब नहीं, बट काम होना है. तो ईदर ऑफ द टास्क, मतलब ईदर ऑफ द टास्क, या तो एक टास्क या तो दोनों टास्क कैसे परफॉर्म किए जाएंगे? m plus n वेज से, मतलब the number of ways to perform any of the task or either of the task would be m plus n. Let's see the example here. Suppose a bakery has a selection of 15 different cupcakes and 10 different donuts and 5 different muffins. ठीक है, ये सब डिशेस है, 15 cupcakes है, 10 donuts and 5 different muffins है. If you are to select a tasty treat, how many different choices of sweets can you choose from? अभी आपको टेस्टी ट्रीट सेलेक्ट करनी है, आपको ट्रीट सेलेक्ट करनी है, या तो आप कपकेक ले सकते हो, डोनट्स ले सकते हो, या तो मफिन ले सकते हो. यू हैव टू परफॉर्म अ टास्क ऑफ सेलेक्टिंग ट्रीट. So how many different choices of sweets can you have? You have choice for 15 cupcakes plus 10 different donuts plus 5 different muffins. The total ways of making the tasty treat possible is 15 plus 10 plus 5, that is 30 ways. So 30 ways है आपको to treat, to select your tasty treat. So this is what the example based on, this is the example based on fundamental principle of addition. Clear है fundamental principle of addition? यहाँ पे क्या चीज आ रही है, यहाँ पे कौन सा वर्ड शॉर्टकट ट्रिक क्या है, यहाँ पे और है, यहाँ पे शॉर्टकट वर्ड क्या है जो दिमाग में रखना, और क्योंकि यहाँ पे जो टास्क दिए रहते हैं इसमें से कोई तो एक टास्क होना रहता है, या तो ये पहले से हो या तो दूसरे टास्क से हो, कोई तो एक टास्क परफॉर्म होना है, या तो m वे से होना है या तो n वे से, तो दोनों मिला के टोटल वेज तो हमारे पास m plus n है, तो कोई भी एक ऑकर हुआ तो चलेगा. दिस इज हाउ the or the word or indicates that there we are using principle of addition. The word or indicates that there we are adding the total ways, right, the respective ways to get the total ways of a particular experiment to happen. क्लियर है बात? ये हो गया हमारा एडिशन का प्रिंसिपल. और इसके अलावा हमें रिवाइज करना है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये क्या बोलता है? अगेन यू हैव अ टू टास्क टू परफॉर्म, वन ऑफ द परफॉर्म करने के वेज है m एंड सेकेंड टास्क को परफॉर्म करने के वेज है n. ओके, if when it has been completed in any one of the m ways for the first task, second task can be completed in n ways, then the two tasks in succession, understand the word succession. सक्सेशन का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि पहला टास्क तो होना ही हो, दूसरा टास्क भी होना है, तो पहला टास्क जैसे ही खत्म हो जाता हमें दूसरे टास्क के लिए काम करना है, मतलब जो दो टास्क दिए वो दोनों टास्क होना है, तो इसलिए यहाँ पे आता है एंड का सिंबल, एंड आता है, एंड मतलब दोनों भी होना जरूरी है. तो ये ऐसा प्रिंसिपल है, अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है तो वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के लिए उसके जो पार्ट्स है वो दोनों का होना जरूरी होता है. दैट इज हाउ इफ यू हैव W1 वर्क एंड W2 वर्क टू कैरी आउट, W1 के लिए m वेज है, W2 के लिए n वेज है. W1 वर्क आपने कर लिया बाय चूजिंग एनी वन ऑफ द m वेज, बट ये W1 ही हो गया, बट हमें W2 वर्क भी करना है, तो ये n वेज, तो टोटल कितना हो गया? टोटल वेज m into n हो गया, तो m into n, that is the total ways of performing the task in succession. in succession मतलब एक के बाद एक, दोनों का होना जरूरी है. तो जैसे कि अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं. there are suppose 5 roads leading to a town from a village. okay, हमें विलेज से टाउन को जाने के लिए 5 रास्ते हैं. द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच विलेजर कैन गो टू द टाउन एंड रिटर्न बैक. एक तो बंदे को जाना भी है टाउन, सॉरी फ्रॉम टाउन से विलेज जाना है और विलेज से वापस टाउन भी आना है, मतलब यहाँ पे दो वर्क है. वर्क वन क्या है, कहाँ से जाना है उसको? विलेज से टाउन जाना है, एंड वर्क टू क्या है उसका? टाउन से रिटर्न विलेज आना है.
अभी विलेज से टाउन जाने के लिए यहाँ पे इसके पास 5 रोड है, तो ये 5 वेज हो गया। फिर से टाउन से विलेज जाने के लिए वही 5 वेज है ना, फिर से कोई नया रास्ता तो नहीं आया, 5 रोड्स ही बताया उसे। मतलब यहाँ पे दोनों टास्क होने हैं, दोनों टास्क होना है, गो टू द टाउन एंड रिटर्न बैक फ्रॉम द टाउन, रिटर्न बैक टू द टाउन। तो ये हो गया टोटल वेज 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो इसका आंसर क्या होना है, ऑप्शन ए होना है। समझ में आएगी ना बात, प्रिंसिपल का कैसे काम करेगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करेगा एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कैसे काम करेगा, समझ में आया। एडिशन में क्या होगा और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा एंड का मतलब दोनों होना जरूरी है, और का मतलब जो अवेलेबल है उनका टोटल सम, उसमें से कोई भी एक चलेगा। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। नाउ वी प्रोसीड विद द फैक्टोरियल। व्हाट इज अ फैक्टोरियल? फैक्टोरियल बेसिकली इट्स अ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ first n natural numbers when we write it as n factorial and is denoted by n factorial. कुछ लोग नोटेशन ये लिखते हैं या तो कुछ लोग नोटेशन ये भी लिखते हैं। These are two the notations of the factorial. What is a factorial? It's the continuous product of natural numbers. If I write n factorial, it's a continuous product of n natural numbers. For example, if I write 6 factorial, then it's continuous product of 6 natural numbers. 6, 5, 4, 3, 2, 1. We write basically the product in the descending order. So when I write the 7 factorial, I shall write 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That is how the factorial works for us, right? Factorial का मतलब समझ में आया, it's a continuous product of first and natural number as a n factorial. अभी इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, देखो दिमाग में कर लो, ये एक बार रिवाइज कर लो। क्या है प्रॉपर्टीज? जैसे कि हमें पता चला कि n फैक्टोरियल हमें पता चला, तो n फैक्टोरियल को हम लोग n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते क्या? बिल्कुल भी लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल देख लो, समझो मेरे पास 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल को मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखूंगी ना, क्योंकि 7 फैक्टोरियल का मतलब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें से 7 को बाजू में रखो, 6 टू 1 तक का 6 फैक्टोरियल हो गया ना। आप चाहे तो इसको ऐसे भी रिड्यूस कर सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। So this is always possible to write for us as per the convenience we want in a solving the problem. ठीक है। और एक important बात, जीरो फैक्टोरियल बाय डिफॉल्ट क्या डिफाइंड है? 1 डिफाइंड है। यू हैव टू रिमेंबर जीरो फैक्टोरियल वैल्यू इज फिक्स्ड, इट इज 1। और क्या है? फैक्टोरियल्स ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर नॉट डिफाइंड। रिमेंबर, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास, हाफ टू द फैक्टोरियल ये नहीं है ऐसा कुछ। नेगेटिव नंबर का भी ऐसा फैक्टोरियल नहीं है। सो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, फ्रैक्शंस के लिए फैक्टोरियल्स आर नॉट डिफाइंड। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। और एक दो पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। देखो, जब भी आपके पास m प्लस n इसका ब्रैकेट का फैक्टोरियल है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ऐसे कभी नहीं लेना। आपके पास है 2 प्लस 3 फैक्टोरियल, इसको आप 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो क्या एडिशन में? नहीं लिख सकते, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। यू कैन चेक आउट, इसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल, इसका आंसर आएगा 2 प्लस इसका कितना रहता है 6, तो ये यहाँ पे ये आ रहा 8। पता है 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 होता है। सो दिस इज नॉट इक्वल। समझ में आ रही है बात? तो मैंने एग्जांपल से आपको वेरीफाई भी करके दिया। सिमिलरली यू कैन वेरीफाई दैट mn, द प्रोडक्ट ऑफ m and n, इसका फैक्टोरियल विल बी नेवर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टोरियल्स ऑफ m and n रिस्पेक्टिवली। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, इसको आप वेरीफाई खुद से कर सकते हो, वेरीफाई योरसेल्फ। Okay, take examples for m and n and check mn का factorial is not equal to m factorial into n factorial। हो गई बेसिक बातें about the factorial। now हम आते हैं मेन चैप्टर पे, that is permutation। what is a permutation? understand and revise yourself very well। permutation एक टाइप का अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट। अभी अरेंजमेंट कैसे का, किसका अरेंजमेंट? आपके पास रहेंगे गिवन ऑब्जेक्ट्स, ओके या तो बोलेगा वो टोटल ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करो, या तो टोटल के टोटल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करो। इसीलिए परमुटेशन की डेफिनेशन क्या है? ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स व्हिच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द नंबर ऑफ थिंग्स। आपके पास कुछ n नंबर ऑफ थिंग्स है, ये n नंबर ऑफ थिंग्स को ही अरेंज करने के लिए बोलेगा, या तो n में से r को सिलेक्ट करके अरेंज करने के लिए बोलेगा। तो ये अरेंजमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं? ये डिफरेंट अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? परमुटेशंस बोलते हैं। So permutation is a word similar to the word arrangement only, where either we can arrange all the objects in a process or some of the objects in a given process। Clear है? एक example मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए। समझो हमें है how many words that can be formed from the letters of the word भोपाल। अभी भोपाल में कितने लेटर्स है? सब डिस्टिंक्ट है। देखो कितने हैं टोटल लेटर्स दिख रहे? 6 है। इसमें कितने हैं टोटल लेटर्स? 6 है, और सबके सब डिस्टिंक्ट है। दिख क्या है क्या आपको? कुछ भी रिपीटेड है क्या? नहीं। 6 के 6 डिस्टिंक्ट है। मतलब ये एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट्स है, ये 6 ऑब्जेक्ट से ही मुझे क्या बनाने? वर्ड्स बनाने। मतलब मेरे को फिल करने ये 6 प्लेसेस ही, और ये 6 प्लेसेस को फिल करने के लिए मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट्स है। तो मतलब ये यही चीज होगी ना, मुझे 6 ऑब्जेक्ट के 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है।
है ना, जितने ऑब्जेक्ट्स है उतने सभी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना। तो ये हो गया परमुटेशन। तो हर एक के लिए अभी मैं इसमें से कोई भी एक लेटर उठाऊंगी तो पहले लेटर के लिए मेरे पास 6 वे रहेंगे, दूसरे लेटर के लिए तो 5 वे रहेंगे ना, और तीसरे लेटर के लिए 4, फिर 3, फिर 2, 1, देखो 6 फैक्टोरियल हो जाता, 6 फैक्टोरियल हो जाता। और ये 6 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 6p6, जो कि मैं अभी आपको फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। 6p6 कितना आता पता है आपको? 120 इंटू 6, 720 आता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार आप चेक कर लो। तो ये समझ में आया? अभी मैं यहाँ से एक फॉर्मूला बना रही हूँ, ये परमुटेशन का फॉर्मूला बन के आता, क्योंकि परमुटेशन इज ऑल अबाउट अरेंजिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, different arrangement. It's all about the different arrangements which can be made by making either some of or all of the things together. All of the things is called the permutation. तो समझ में आया ना? अब देखो हमारे पास है ये फॉर्मूला, NPR का फॉर्मूला, ये दिमाग में रख लो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर है बात? समझो अगर ये पिछले सम में मैं आपको बोलती कि मुझे सिर्फ 3 लेटर के वर्ड्स बनाने, कितने? 3 लेटर के वर्ड्स बनाने, और यही लेटर को यूज करना है, तो मेरे पास 6 लेटर है ना, तो मेरा अरेंजमेंट क्या होता है? 6p3 होता। 6 ऑब्जेक्ट्स थे मेरे पास, 6 लेटर्स अवेलेबल है, बट मुझे उसमें से 3-3 लेटर को लेके अरेंज करना है, तो 6p3 बनेगा। तो यही तो फॉर्मूला, अभी 6p3 यहाँ पे कैलकुलेट करो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल लिख के 3 फैक्टोरियल कट, आ जाएगा आंसर 30 इंटू 4, दैट इज 120। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस फॉर्मूला को यूज करना है। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल होता। समझ में आया ना? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? बेसिक डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन से आया ये फॉर्मूला, बेसिक डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन से, जहाँ पे हमें कुछ या तो सब कुछ सभी थिंग्स को अरेंज करना होता। ठीक है, अभी आते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिक से। यहाँ से अभी यहाँ के इसके बाद, नाउ आफ्टर दिस लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फ्रॉम द परमुटेशन। आपको एग्जाम में, एनडी एग्जाम में कुछ भी कंडीशन दे के परमुटेशन पूछते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वाला नहीं पूछते। सिंपल वाला कभी कभी आता है, दैट इज प्लस पॉइंट, आपको स्कोरिंग देता है उस टाइम पे, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे रहते हैं कि उसमें क्या कंडीशन आता है। तो हम लोग को अभी देखना है कंडीशनल परमुटेशन, जिसको मैं ट्रिक्स के फॉर्म में लेके आई हूँ। तो मैं आपको फॉर्मूला बना के देने वाली हूँ, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा लो, वो प्रॉब्लम को आपका सॉर्ट हो जाएगा प्रॉब्लम। देखो पहला ट्रिक्स देखते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपको अरेंजमेंट करना है, तो द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन ईच थिंग मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इज। मतलब आपके पास थे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स? टोटल थे n, बट इसमें से आपको लेने हैं r। ठीक है, बट ये r ऑब्जेक्ट्स का कंडीशन क्या? आप जो भी ऑब्जेक्ट ले लो उसको रिपीट कर सकते हो फिर से सिलेक्शन में। समझ में आ रहा है? फिर से सिलेक्शन में क्या कर सकते हो? रिपीट कर सकते हो। मतलब आपके पास ये r प्लेसेस है, ये कितने प्लेसेस है? r प्लेसेस है इसके अंदर ये। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे, n ऑब्जेक्ट है टोटल, और r आपके चूज करने के ऑब्जेक्ट्स है, जिसको आपको क्या करना है? अरेंज करना है। ठीक है, तो उसको अरेंज ऐसे करना है कि आप उसको फिर से रिपीट कर सकते हो, आपको उसको क्या कर सकते हो? रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे ये जो है ना, ये टोटल r प्लेसेस है ना, हर एक प्लेस को n ऑब्जेक्ट्स का, क्योंकि हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं वो कोई भी हो सकता है ना n में से, तो n इंटू n इंटू n इंटू ऐसे कितना हम लोग को कितना चूज करना था? r, तो r प्लेसेस तक के चूज करने के आएंगे, तो n टू द पावर r आ जाएगा। ये समझ में आया क्या फॉर्मूला आपको? क्या चीज हो रही है यहाँ पे? हमारे पास है n ऑब्जेक्ट्स, बट उसमें से हमें r ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है अरेंज करने के लिए, बट कंडीशन ये है कि उसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट उठाया n में से, टोटल n ऑब्जेक्ट में से एक उठाया, फिर से उसको वापस रख के दूसरा उठाने जाऊंगी, मतलब वो हमेशा मेरे को अवेलेबल है ना। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को चूज करने के लिए मेरे पास n वेज है, तो टोटल मुझे r ऑब्जेक्ट चूज करना है यहाँ पे अरेंज करने के लिए। तो हर एक को n वेज, कितने n टू द पावर r वेज आएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा ये पिक्चर क्या है यहाँ पे। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस बी रिप्लाइड। अभी देखो 10 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन को दो आंसर है, या तो वो ट्रू हो सकता है तो फॉल्स हो सकता है। समझ में आया क्या? या तो ट्रू हो सकता है और फॉल्स। मुझे कितने आंसर करने हैं? मतलब मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने? 10 है, ये 3 हो गए, ये 6 7 8 9 और 10, ये 10 है ना, तो हर एक को मेरे पास दो दो है ना, हर एक को मेरे पास दो दो वेज है टू अरेंज, या तो वो ट्रू हो सकता है तो फॉल्स होता है। तो ये 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 10 कितना आता? 1024, तो इसका आंसर हो गया डी। तो ये फंडा समझ में आना, ये अभी जब पढ़ रहे तो लगता है डिफिकल्ट है, बट एग्जाम्पल में आपको आसानी से समझ में आ रहा है ना। 10 क्वेश्चन है, उसको दो ऑप्शन है, मतलब हर एक क्वेश्चन को दो दो ऑप्शन है,
तो कितने वेज है, कितने वेज में एक बंदा रिप्लाई कर सकता है, हर एक को दो वे में, दो वे है उसको रिप्लाई करने के लिए। टोटल 10 मतलब टोटल 10 क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन को दो वे, मतलब टोटल 2 to the power 10 वेज हो गया। समझ में आ गई क्या बात आपको? तो इस तरह से है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक ना जब पढ़ते थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता, बट एग्जाम्पल में उसको आसानी से समझ में आता। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक अपना। द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब सब कुछ ले रहे हो, आपके पास है n ऑब्जेक्ट्स और उन सभी n ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज कर रहे हो। तो ये तो यही बात हो गई ना npn वाली। npn का फॉर्मूला हो जाता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल, जो कि होता है n फैक्टोरियल ओनली, बिकॉज जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती। तो npn कभी बेस रहेंगे जब आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है और उन्हीं सभी को आपको अरेंज करना है। जैसे कि मैंने लेटर भोपाल के लेटर्स को अरेंज किया, मुझे भोपाल के लेटर्स को अरेंज करके वर्ड्स बनाने थे। तो 6 लेटर थे, 6 प्लेसेस थे, तो सबको अरेंज करना था अमंग्स देमसेल्व्स। तो 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे भी वैसे ही चीज है। तो यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल आपके लिए लेके आई हूँ। देखो, इन अ रेलवे कंपार्टमेंट देयर आर 6 सीट्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 पैसेंजर्स कैन ऑक्यूपाई दिस 6 सीट्स। 6 सीट्स है, n6 है, और जो पैसेंजर्स यहाँ पे ऑक्यूपाई करने वाले वो भी कितने 6 है। तो ये 6p6 अरेंजमेंट है, 6 फैक्टोरियल है। तो इसका आंसर है 720, ऑप्शन सी। क्लियर है क्या बात? आपको समझ में आ रही है क्या बातें? इजी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, थोड़ा अच्छे से लॉजिक लगा के आपको इसको समझना है। लॉजिक आप जब आप ये सुन रहे हो, आपके दिमाग में लॉजिक चलना चाहिए कि ये कैसे पॉसिबल है, तभी आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, कुछ यहाँ पे रट्टा मारने की चीजें नहीं है, ये समझ के लेने की चीजें है। ठीक है, अभी देखो और एक ट्रिक। अभी ये ट्रिक में क्या बोल रहा बंदा, समझो हमें परमुटेशन निकालने, मतलब अरेंजमेंट निकालने, हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, सभी चीजों को तो लेना है, बट कंडीशन ये है कि इसके अंदर, ये n के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स p टाइम्स है, कुछ ऑब्जेक्ट्स q टाइम्स है, कुछ ऑब्जेक्ट्स r टाइम्स, मतलब यहाँ पे अलाइक अलाइक है। समझो मैं कुछ लेटर बोल दू, कूल, लेटर कूल में यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे लेटर o जो है ना 2 टाइम्स है, तो ये अलाइक हो गया ना। समझ में आ रही है कि बात? तो इस टाइप का समझो हमें n ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स को तो अरेंज करना है, बट कंडीशन ये है कि उसके अंदर कुछ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स है। तो रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते, बंच बनाते, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते, बंच बनाते हैं, उसको सिंगल सिंगल फिर से, क्योंकि क्या होगा जब हम लोग इसके अरेंजमेंट करेंगे, ये p रिपीट होगा, ये q रिपीट होगा, r रिपीट होगा, ना, तो उतने जो रिपीटेड अरेंजमेंट है उसको कैंसिल करना है, इसीलिए इसका फॉर्मूला बनता n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो अभी समझो मेरे को लेटर्स ऑफ द वर्ड कूल को अरेंज करना है, तो इसका 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि यहाँ पे o रिपीटेड है। समझ में आ रही है क्या बातें? समझ में आ रही है क्या बातें? क्लियर है ना? n ऑब्जेक्ट्स है, कुछ कुछ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स है उसमें, तो उसमें क्या होगा जब हम डायरेक्ट सबके सब अरेंज करने जाएंगे तो उसमें रिपीटेशन होगा ना, तो उतना रिड्यूस करना हम लोग को, रिपीटेड वर्ड्स को रिड्यूस करना। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, डिवाइड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। क्लियर बात है? यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको पढ़ा दिया। अभी देखो नेक्स्ट वाला ट्रिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक, अच्छे से समझो इसको। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, n ऑब्जेक्ट्स है, हमें उसमें से चूज करने r ऑब्जेक्ट्स टू अरेंज व्हेन पर्टिकुलर थिंग इज टू बी इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट। क्या बोल रहा बंदा, ये जो भी मैं अरेंजमेंट करने जा रही हूँ उसके अंदर एक बंदा तो हमेशा फिक्स्ड है, एक बंदा क्या है, फिक्स्ड है। मेरे को कितने बंदों के अरेंजमेंट है यहाँ पे, r, ये कितने हैं, r है। तो समझो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ n ऑब्जेक्ट्स है हमारा 4 और r है हमारा 3। अभी इसमें से मैंने बोला है कि ये 3 ऑब्जेक्ट्स में पर्टिकुलर थिंग जो है ना, पर्टिकुलर थिंग को हमेशा इंक्लूड करना है। तो ये 3 के अंदर एक एक बंदे को, मेरे को समझो ए पर्सन को इंक्लूड करना है हमें हमेशा। तो इसका कैसे जाएगा, ये जो एक पर्सन रहेगा, या तो ये 3 आर में से, या तो 1 2 3, R1 R2 R3 कोई भी हो सकता है ना, वो इसीलिए वो R टाइम्स होता, R टाइम्स ये n-1 p r-1। ये क्या चीज है, ये n-1 p r-1 क्यों आया, क्योंकि हम लोग एक बंदे को क्या कर रहे हैं, हमेशा इंक्लूड कर रहे हैं। तो मैंने उसको r टाइम्स तो लगा दिया, वो कोई भी हो सकता है r में से, तो r टाइम्स लगा दिया, मतलब वो बंदे को भी हटा दो टोटल में से। तो n-1 को आपको अरेंज करना है r-1 प्लेसेस में। समझ में आया क्या, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया क्या? तो इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, n इक्वल टू 4 r इक्वल टू 3, और ऑब्जेक्ट a को हमें इंक्लूड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 इंटू यहाँ पे आएगा ये 3p2 आएगा, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्ट को, r में से एक ऑब्जेक्ट को लेके हमेशा उसको फिक्स कर दिया, वो कोई भी हो सकता है 3 में से, इसलिए उसको 3 वेज है चूज करने के। तो 3 इंटू 3p2 कितना आंसर आता है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, दैट इज 3 इंटू 6, दैट इज 18 वेज आते हैं इसके। ये चीज समझ में आ रही है कि आपको? एक बार रिवाइज करती हूँ, हमें है n ऑब्जेक्ट्स, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स तो चूज कर रहे हैं हम अरेंज करने के लिए, बट क्या चीज हो रही है, वो r ऑब्जेक्ट्स में हम लोग बोले कि एक बंदे को हमेशा लेना है,
तो वो बंदे को क्या करो, आर में से तो उसको आर ऑब्जेक्ट में ही वो बंदा है, तो आर प्लेसेस है उसको, है ना, कोई तो आर में से कोई तो एक हो सकता है, इसलिए आर टाइम्स हो जाएगा, बट वो जो बंदा है उसको हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया आर में, तो उसको टोटल में से निकाल दो और सिलेक्शन में से निकाल दो, जो हमें अरेंज करना है अरेंजमेंट के सिलेक्शन में से निकाल दो, तो n-1 p r-1 होगा। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा व्हेन पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड। अभी दूसरा है नेक्स्ट, पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। सेम चीजें हैं, एंड डिफरेंट थिंग्स है आपके पास, आर को आप उसमें से ले रहे हो अरेंज करने के लिए, देन पर्टिकुलर थिंग को आपको हमेशा एक्सक्लूड करना है, तो उसको बाहर निकाल के रख दो ना, उससे मतलब नहीं है हमें, उसको इंक्लूड ही नहीं करना है, तो हमें मान के चलना है हमारे पास एन नहीं है, वी डोंट हैव एन हियर, वी हैव व्हाट, वी हैव n-1, क्योंकि ये बंदे को हमेशा एक एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो समझो हमारे पास है 4 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी, तो मैंने बोला इसमें से किसी एक को, कोई भी एक जो भी रहेगा उसको बाहर कर दो, एक को बाहर कर दो, वन इज एक्सक्लूडेड, वो कोई भी हो सकता है, तो मतलब हमारे पास 3 लेटर्स है, 3 लेटर्स को हमें अरेंज करना है, समझो दो लेटर वर्ड बना, तो 3p2 इसका हो जाएगा, ये आर जो भी है वही रहेगा, हम लोग ने क्या किया, जो एक्सक्लूड कर रहे हैं उसको हम लोग बाहर हटा दे रहे, उसको हटा दे रहे काम से, उसको काम नहीं दे रहे हम इसको किन लोगों को काम दे रहे, n-1 को काम दे रहे, तो n-1 p r, ठीक है। तो 3p2 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल, 6 आ जाएगा। समझ में आई क्या बात है। अभी देखो नेक्स्ट वाला आता है, अभी मैं क्या बोल रही हूँ देखो, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इन विच m पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, अंडरस्टैंड करो, m पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज एक्सक्लूड। अभी मैं जस्ट पीछे क्या बोली, एक ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूड करना, अभी इधर कितने ऑब्जेक्ट्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं हम, m, तो मतलब उनको हटा दो ना, टोटल हमारा ये हमारा n जो है ना n-m में चेंज हो जाएगा, r तो उसको ही करना है, सिलेक्शन हमें जो अरेंज करने हैं r अरेंज करना है, ठीक है। तो n-m p r हो जाएगा, ये बहुत ही आसान है कि नहीं। तो समझो आपको कुछ तो ऐसे सिचुएशन दे के रखा है, आपके पास है 5 प्लेसेस का कुछ अरेंजमेंट, ओके, और इसमें से हमें 3 को अरेंज करना है आर, बट यहाँ पे बोला है कि एक दो बंदे को ए एंड बी को ऑलवेज एक्सक्लूडेड है, वो उसको इंक्लूड ही नहीं करना है, ऑलवेज एक्सक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, हमारे पास जो है ना, हमारे पास 5 में से वो 2 को हटा देंगे, किसको अरेंज करना है, 3 बंदों को अरेंज करना है, तो 5 - 2 p3, मतलब ये 3p3, 3 फैक्टोरियल 6 आएगा इसका आंसर। समझ में आ रही है क्या बातें। देखो अभी नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इन विच m पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। अभी एक्सक्लूडेड हो गया तो उसमें से हटा दिया हम टोटल में से, अभी इंक्लूड करो मतलब क्या है, कैसे करो इंक्लूड, अभी सोचो यहाँ पे हमारे पास है टोटल n, इसमें से हमें अरेंज करने आर, अभी जो इसमें इंक्लूड करने जा रहे वो बंदे तो इसमें आने जरूरी है ना, तो इनको इतने इतने फैक्टोरियल है ना बेस, तो इधर आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा आर फैक्टोरियल, और वो जो बंदे को जो ऑलवेज इंक्लूड करना है उसको यहाँ से हटा दो टोटल में से, क्योंकि हमने इसका अरेंजमेंट इसमें बता दिया आर फैक्टोरियल में, क्योंकि वो जो आर हम अरेंज करने जा रहे हैं वो उसमें से कोई भी हो सकते हैं ना, वो बंदे जिसको हमें हमेशा इंक्लूड करना है, इसीलिए उनको आर फैक्टोरियल भेज रहेंगे, इनटू हमें उनको छोड़ के भी रिमेनिंग को अरेंज करना है ना, रिमेनिंग कौन से ऑब्जेक्ट्स n-m p r-m। आपको बातें समझ में आ रही है क्या, हमने क्या बोला है यहाँ पे, जो r को हम अरेंज करने जा रहे हैं इसमें कुछ ए जो m ऑब्जेक्ट्स है इसमें हमेशा इंक्लूडेड है, हमेशा इंक्लूडेड, तो पहले मैंने उनको ही अरेंज कर दिया, उनको अरेंज करने के लिए r फैक्टोरियल बेस है, वो r में से किधर भी तो बैठ सकते हैं ना, वो जो भी इंक्लूडेड है, तो उधर बैठ गए वो जितने भी वो बैठ गए, अभी बचे कितने r-m बचे ना, तो मतलब हमें n-m p r-m अरेंजमेंट करना है, तो इसीलिए ये अरेंजमेंट करना है। समझ में आ रही है कि बात है, इसका एग्जाम्पल आप वर्कआउट करो, वर्कआउट योरसेल्फ, इजी है ये, इजी है, समझ में आ रही है ना बातें। देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं, अभी नेक्स्ट वाला हमें क्या बोल रहा कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, n थिंग्स है और सबको लेना है, r इक्वल टू भी n है हमारे यहाँ पे, when m specified things always come together, मतलब हमें कुछ m चीजें को हमेशा साथ में रखना है, हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर ना m चीजों को, ये जो है ना m चीजों को साथ में रखना है, तो उनका एक बंच बना लो, उनको साथ में रखना है तो उनका हम बंच बना लेंगे एज एम, है ना, तो वो ये समझो हमें है यहाँ पे टोटल 4, इसमें हम इन दोनों को समझो, मैं इसको नाम देती हूँ ए बी सी डी, समझो बी सी का मैंने एक बंच बना लिया, तो मेरे पास अभी ये ए, ये बंच एक और ये डी, तो कितने ऑब्जेक्ट्स है 3, तो मेरे को ये 3 ऑब्जेक्ट्स को 3p3 में अरेंज करना है, बट मैंने
वो ये जो ऑब्जेक्ट्स थे दो, बी सी को मैं अंदर ही अंदर अरेंज कर सकती हूँ ना 2 फैक्टोरियल वे से, तो इसीलिए ये फॉर्मूला बनता। मतलब आपने किया क्या, वो जिसका बंच बनाना था m, उनको टोटल में से निकाल दिया, टोटल में से उनको निकाल के, क्योंकि उनका एक बंच ऐड किया तो टोटल मैंने इनको एक 1 काउंट किया ना, देखो ये n में से m निकाल के 1 ऐड किया, उसका फैक्टोरियल, ओके उसका फैक्टोरियल, एंड इनटू क्या होगा उसको m फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू क्या होगा इसको m फैक्टोरियल होगा, ये m फैक्टोरियल क्या है, ये है 2 फैक्टोरियल। समझ में आई क्या बात है, इजी है ये, इजी है ये, आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे बहुत आसान है ये, ठीक है। आपको इधर करना क्या है, जिनको साथ में रखना है उसको बंच बना के एक ऑब्जेक्ट करके लेना है, तो ये m के अंदर वो टोटल जो जितने सेम बंच बनाने थे उसको निकाल के एक 1 हमें ऐड किया, तो इसका हमें परमुटेशन लगाना, फैक्टोरियल इसको इनटू करना, फिर से बंच अपने अपने अंदर वो अरेंज होगा ना, तो m फैक्टोरियल, इसीलिए ये आंसर आता है इसका, m फैक्टोरियल इनटू n माइनस m प्लस 1 द फैक्टोरियल। क्लियर है बात। अभी देखो और एक है यहाँ पे, number of permutations of n different things taken all at a time when m specified things never come together। अब ये never come together मतलब subtraction आ गया, ये जो चीज है ना m things always together है, ये always together, तो हमने अब भी इसके लिए काम किया, इसका फॉर्मूला हमने बनाया m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसको हमने टोटल में से निकालना है, टोटल npn था ना हमें, टेकन ऑल एट अ टाइम, npn में से मतलब n फैक्टोरियल में से हमें ये ऑलवेज टुगेदर निकाल दिए, तो हमें जो बचेगा नेवर टुगेदर का आएगा, नेवर टुगेदर वाला आएगा। क्लियर है, तो जब भी नेवर टुगेदर का क्वेश्चन आता है उसको टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर करके ही काम करना हमेशा। तो क्लियर है, ये हो गए हमारे स्पेशल परमुटेशन जो हमने अभी तक डिस्कस किया। अभी इसके अलावा हमारा और एक टाइप ऑफ परमुटेशन आता है जिसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट्स अराउंड सर्कल, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर परमुटेशन। सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट सर्कुलर परमुटेशन। हमें ऑब्जेक्ट्स को कहाँ पे अरेंज करना है, अराउंड द टेबल, अराउंड द टेबल जो कि राउंड टेबल है, सर्कल में अरेंज करना है। तो आपको पता है मैं यहाँ से चालू करूँ, यहाँ से चालू करूँ, यहाँ से चालू करूँ, यहाँ से चालू करूँ, वो है तो वो सर्कल है। तो सर्कुलर परमुटेशन का लॉजिक क्या है, हम क्या करते, इसको एक प्रॉपर रीडिंग ऑर्डर बनाने के लिए किसी एक को बंदे को फिक्स करते। समझो मैंने ए को यहाँ पे फिक्स किया, तो ए के राइट साइड या तो लेफ्ट साइड करके हम अरेंजमेंट कर सकते। तो इसीलिए हम सर्कुलर परमुटेशन में क्या करते हैं, वी फिक्स द पोजिशन ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड देन वी अरेंज द अदर ऑब्जेक्ट्स इन ऑल द पॉसिबल वेज। अभी टोटल ऑब्जेक्ट समझो n है, उसमें से मैंने एक बंदे को ऑलरेडी किधर तो बिठा दिया है, तो मेरे पास अभी जो प्लेसेस बचे हैं वो अराउंड राइट ऑफ ए या तो लेफ्ट ऑफ ए, कितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, n माइनस वन, तो n माइनस वन फैक्टोरियल इसलिए हो जाता। तो हम लोग सर्कुलर परमुटेशन में वो जो एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करे उसको एक ही वे करके फिक्स कर देते, तो बचे हुए n माइनस वन को ही हमें अरेंज करना रहता है सर्कुलर परमुटेशन। इसलिए सर्कुलर परमुटेशन क्या होते हैं, सर्कुलर परमुटेशंस आर n माइनस वन फैक्टोरियल फॉर n ऑब्जेक्ट्स। ओके, अभी देखो यहाँ पे कंडीशन आती है, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर टेकन एज डिफरेंट देन n माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि ये राइट साइड लेफ्ट साइड ये दो अलग अलग है, मतलब यू गो राइट ऑफ ए दैट इज क्लॉकवाइज और लेफ्ट ऑफ ए दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, जब ये दो अलग अलग होते हैं तभी ये है ओरिजिनल है ये हमारा n माइनस वन फैक्टोरियल। बट जब ये दोनों काउंटेड एट सेम, if the anti-clockwise order and clockwise order if it is counted as same then ये हाफ हो जाएंगे ना, क्योंकि आप राइट साइड से करो या तो लेफ्ट साइड से करो, अगर वो सेम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है तो आप राइट से करो लेफ्ट से करो मतलब वही होता ना। तो इसके इसलिए परमुटेशन क्या होते, हाफ टाइम्स हो जाते। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, देखो नेकलेस बीट्स, समझो हमें राउंड नेकलेस बनाना है, बीट्स सभी आइडेंटिकल है, तो हमने एक बीट को यहाँ पे फिक्स किया। अभी बीट्स आप राइट साइड में लगाओ लेफ्ट साइड में लगाओ, आप उसको कैसे भी घुमाओ वो दिखेगा तो नेकलेस है ना। तो इसलिए नेकलेस के यहाँ पे अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, हाफ टाइम्स n माइनस वन फैक्टर, ठीक है। बट ये जब ये बीट्स जब डिफरेंट डिफरेंट कलर के रहेंगे, सब डिफरेंट रहेंगे, यूनिक यूनिक, तो यहाँ पे राइट साइड अरेंजमेंट लेफ्ट साइड अरेंजमेंट काउंट होगा। समझ में आ रही बात है, राइट साइड अलग और लेफ्ट साइड अलग काउंट होगा जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, तो उसका क्या आएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल आएगा। क्लियर है बातें। अभी आते हैं हम नेक्स्ट पे, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। हमारे पास है एक सर्कल बनाने के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, बट टोटल n में से हमें सिर्फ r को अरेंज करना है। when clockwise and anti-clockwise orders are taken as different then npr by n, ये फॉर्मूला याद रख लो, npr by r, npr by r क्या है, ये क्या चीज है, आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है अराउंड द टेबल अरेंज करने के लिए,
अराउंड द सर्कल अरेंज करने के लिए, बट उसमें से सिर्फ आर ऑब्जेक्ट्स को अराउंड द सर्कल अरेंज करना है, तो NPR डिवाइड बाय आर रहेगा। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा रिमेंबर करने जैसा है, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल लेके वर्कआउट कर सकते हो। अगर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर सेम तो इसका हाफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ NPR बाय आर, ठीक है। तो ये तो वही हो गया, जब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम रहेगा तो वो हाफ हो जाएंगे परमुटेशन, जब नहीं सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा तो क्या रहेगा फॉर्मूला, NPR बाय आर। तो ये पर्टिकुलर याद रखो, n ऑब्जेक्ट्स है, r ऑब्जेक्ट्स को हमें सर्कल में अरेंज करना है, तो NPR अपॉन r हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम है तो हाफ ऑफ द परमुटेशन हो जाएंगे, NPR अपॉन r। क्लियर है। अभी देखो और एक, सपोज हमारे पास है, तो देख पढ़ने में ऐसे लग रहा है कि सर्कुलर परमुटेशन है, बट करने जाओ तो ये हो जाता है नॉर्मल परमुटेशन, रो परमुटेशन होता है। देखो क्या है, इफ वी मार्क द नंबर्स 1 to n ऑन चेयर्स इन अ राउंड टेबल, अभी है हमारा टेबल राउंड डाइनिंग टेबल, बट सभी चेयर्स को मार्क करके रख दिया यहाँ पे, समझो चेयर्स को यहाँ पे मार्क करके रख दिया, 1 2 3 नंबरिंग करके रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या करके रख दिया बंदों ने, नंबरिंग करके रख दिया। तो अभी मुझे बोला है कि यहाँ पे पीपल्स को सिटिंग दे दो, लेट द पर्सन बी सीटेड ऑन दिस चेयर। तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन जैसे ही है क्या, ये तो हमें डायरेक्ट सिटिंग देना है, मतलब हमें यहाँ पे 1 2 3 4 सो ऑन टिल 12, ये 12 प्लेसेस को फिल करने जैसे, तो नॉर्मल परम्यूटेशन हो गया ना। तो ये 12p12, 12 बंदे हैं, 12 बंदों के लिए 12 चेयर्स है, तो 12p4 12p12 हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, राउंड टेबल दे के डायरेक्ट सर्कुलर परम्यूटेशन है करके आप n-1 फैक्टर लिखना है, ऐसे नहीं, पढ़ो उसको। अगर ये मार्किंग है यहाँ पे सर्कल पे, अगर मार्किंग है, मार्किंग होने से उसको तो आप ओपन कर दो ना, किधर से तो ओपन कर दो कि तो नॉर्मल रो परम्यूटेशन ही हो जाता है। जब मार्किंग नहीं रहता सर्कल पे, ओके, द मार्किंग नहीं रहता, नॉर्मल सर्कुलर परम्यूटेशन रहता है, तभी वो n-1 फैक्टर होता है, तभी, क्योंकि हम तभी क्या करते हैं, एक बंदे को फिक्स करके उसके रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में अरेंज करते हैं। बट इधर क्या हो रहा, इधर तो कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं, इधर तो डायरेक्ट नंबरिंग है, तो वही नंबर पे किसी बंदे को बिठा देना है। तो 12 चेयर से 12 बंदे अवेलेबल है, तो 12p12 हो जाएगा ना। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है ना, ये अच्छे से आपको, राउंड टेबल है और मार्किंग है, तो ये पॉइंट को n फैक्टोरियल बेस रहेंगे। क्लियर है यहाँ पे, तो हमारा परम्यूटेशन यहाँ पे हो गया। अभी हम मूव ऑन करते हैं विथ कॉम्बिनेशन। अभी कॉम्बिनेशन क्या चीज है, कॉम्बिनेशन इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन इज टाइप ऑफ सिलेक्टर जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अरेंजमेंट नहीं है, दीज आर नॉट अरेंजमेंट, दीज आर जस्ट सिलेक्शंस, हमें सिर्फ सिलेक्शन करना है, यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं करना है, सो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस केस। So let us then understand about the combination. Each of the different groups or selections which can be made by some or all of the members of given things without reference to order of the things in each group is called a combination. सिंपल भाषा में बताओ तो ये सिलेक्शन है जिसमें जो बंदे रहते हैं उनका ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में सेलेक्ट कर रहे हैं मैटर नहीं करता, बस उन्हें सेलेक्ट करने का हमें काम है, दैट इज आवर कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास n बंदे हैं, r बंदों को सेलेक्ट करना है, तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया, NCR। अभी ये सब नोटेशन है NCR के, दिस थ्री डिफरेंट आर द नोटेशंस, जैसे हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। NCR इज डिफाइंड एज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे आपको NPR क्या था एक बार रिमाइंड कर लो, तो n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल, और NCR हमें क्या मिल रहा, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल का r फैक्टोरियल। तो मतलब यहाँ पे कुछ रिलेशन दिख के आ रहा ना हमें, क्या रिलेशन दिख के आ रहा, हमें NPR को डिवाइड बाय r फैक्टोरियल करने का, तभी जाके NCR मिलेगा। मतलब हमारा NPR कैसे मिलेगा हमें, NPR इज इक्वल्स टू r फैक्टोरियल टाइम्स NCR। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, आपको एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस आते हैं ये फॉर्मूला बेस, जहाँ पे NPR और NCR दे के रखता, अननोन फाइंड करने के लिए बोलता है NNR, तो ये रिलेशनशिप को यूज करके आपको R मिलता, R मिलने के बाद किसी एक में सब्स्टिट्यूट करो आपको N मिलता, ठीक है। इसके अलावा आपको कॉम्बिनेशन में क्या याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। व्हाट इज दिस, अंडरस्टैंड, NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होगा, N प्लस 1 CR, ओके, N प्लस 1 CR, जैसे कि मतलब कैसे ये बताए, 4C3 प्लस 4C4, तो इसका एडिशन क्या होता है 5C3 होता, 5C4 सॉरी 5C4, NCR प्लस NCR माइनस 1, ये 4 है ये 3 है,
ये 4 है, ये 3 है, तो इसका क्या आएगा n+1 होके C R आता, R मतलब 4, ठीक है। तो 4C3 प्लस 4C4 क्या होता है, 5C4 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे एक भूल गई, वो यहाँ पे याद दिला देती हूँ। NCR को हम लोग NCn-R भी लिखते हैं बिकॉज दिस टू आर इक्वल, यू कैन वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। NCR इज सेम एज NCn-R, ये पॉइंट में यहाँ पे लिखना भूल गई, ठीक है। ये भी आपको दिमाग में रखना है, रखना क्या आप वेरीफाई कर चुके होंगे ऑलरेडी, एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया होगा, तो आपको देखो ये एक बार रिवाइज कर लो। एनसीआर इज सेम एज NCn-R। और एक यहाँ पे देखो ये वाला जो मैंने लिखा है, ये क्या चीज है, ये कहाँ से आया, ये हमारे बाइनोमियल के चैप्टर से आया। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस सो ऑन प्लस NCn इक्वल टू 2 टू द पावर n, ये कहाँ से आया, ये आप 1 प्लस 1 टू द पावर n का एक्सपांशन है, 2 टू द पावर n का एक्सपांशन ये आता। NC0 प्लस NC1 सो ऑन प्लस NCn, तो ये भी चीज एक बार रिवाइज कर लो ताकि आपको दिमाग में हिट हो टाइम पे। क्लियर है क्या, ये सब रिवाइज हो गया। अभी आते हैं ट्रिक्स ऑफ कॉम्बिनेशंस पे। देखो पहला ट्रिक क्या बोलता है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम अलाउिंग द रेपिटेशंस अलाउड। रेपिटेशंस अलाउड है, हम लोग को n ऑब्जेक्ट्स है, r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। क्या अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड। तो क्या चीज होने वाली है फिर यहाँ पे बोलो तो एक बार, रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स है, हमें चूज करने r, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, तो n प्लस आर माइनस 1 CR हो जाएगा, इसका टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, n प्लस आर माइनस 1 CR। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ हमारे पास है 8 डिफरेंट बॉल्स है और मेरे को लेने 3 बॉल्स, ओके। रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, तो कैसे सिलेक्शन कर सकती हूँ मैं, इसका क्या आ जाएगा, सिलेक्शन क्या आएगा, रिपीटेशन अलाउड है, 8 बॉल्स है ना, मुझे सिलेक्शन करना है 3 बॉल, तो ये 8 प्लस 3 माइनस 1 C3, मतलब ये कितना होगा, 8 प्लस 3 11 माइनस 1 10C3 हो जाएगा, 10C3, इसका आंसर क्या आएगा, 10C3 आएगा। समझ में आया क्या, 8 बॉल्स थे मेरे पास, 3 बॉल लेने थे, बट मेरे को रिपीटेशन अलाउड है, कोई भी 3 बॉल्स लेने हैं बट रिपीटेशन अलाउड है, मतलब जो बॉल में ले रही हूँ मैं फिर से ले सकती हूँ, तो n प्लस आर माइनस 1 CR हो जाएगा इसका, ठीक है। अभी देखो दूसरा, द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इन विच m पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ये भी वही हो गया, अभी वही दिमाग लगाओ, हम लोग को सिलेक्शन करना है बट कुछ ऑब्जेक्ट्स को नहीं लेना है सिलेक्शन में, तो उनको तो हटा ही दो टोटल में से, जो लेना है वो लोग आर को तो लेना ही है, बट जिनको नहीं लेना उनको टोटल n में से हटा दो, n माइनस m CR हो जाएगा। और इंक्लूडेड रहेगा तो तभी क्या होगा, उनको इंक्लूड करना है ना, तो मतलब पहले उनको इंक्लूड करके रख दो, भैया तू इधर बैठ जा, पहले तू इंक्लूडेड है ना, तो उनको इंक्लूड करके रख दो, तो बचे कितने ऑब्जेक्ट जिनको हमें चूज करना है, वो r माइनस m बचे, तो कितने में से बचे, n माइनस m में से, तो इसीलिए इसका n माइनस m CR माइनस m। बट अगर ये अरेंजमेंट होता तो इधर p आने के बाद इधर r फैक्टोरियल भी आता, बट ये अरेंजमेंट नहीं, ये सिलेक्शन है, तो जो बंदों को हमें रखना है, इंक्लूड करना है, उसको रख लिया हमने, तो बचे कितने बंदों को, कितने बंदों में से बचे, n माइनस m बंदों में से r माइनस m बंदों को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो n माइनस m CR माइनस m होगा। ये मैं फॉर्मूला भले बना के दी हूँ, बट आपको लॉजिक दिमाग में आ रहा है ना, आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम पे वर्क करना है, ये फॉर्मूला लिखते बैठना से जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम पे वर्क कैसे करना है ये फॉर्मूला से ही मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। क्लियर है बातें। अभी आते हैं ज्योमेट्री पे। देखो ज्योमेट्री में बहुत सारे यूसेज है हमारे कॉम्बिनेशन के, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस आ भी चुके हैं एनडी एग्जाम में, तो ध्यान दो फटक से, अभी वन बाय वन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। समझो हमारे पास प्लेन में n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, क्या है, n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, ठीक है, और बता के रखा है कि नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, मतलब कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आते, सब अलग अलग फैले हुए, कोई भी 3 पॉइंट से एक लाइन नहीं बनता, भले 2 पॉइंट से बनता होगा बट 3 पॉइंट से लाइन नहीं बनता। तो मुझे अभी क्या बनाना है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो मुझे तो 2 पॉइंट से चूज करना है ना, टोटल पॉइंट में से लाइन सेगमेंट कैसे बनेगी, 2 पॉइंट को कनेक्ट करके बनेगी, तो टोटल पॉइंट में से 2 पॉइंट सिलेक्शन करना मेरा क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज हो गया, तो नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी मेड इज इक्वल्स टू NC2, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट पे, समझो हमारे पास n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स थे और उसमें से m बंदे लोग क्या थे, कोलिनियर थे, मतलब एक लाइन पे थे, m बंदे लोग क्या थे, कोलिनियर थे। आपको पता है ट्रायंगल बनने के लिए, अभी इसमें से इन लोगों ने क्या बोला, m पॉइंट्स क्या कोलिनियर है, देन द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स क्या रहेगा, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे, वो जो कोलिनियर है वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना, जब मैं उनको कनेक्ट करने जाऊंगी तो वो तो रिपीट हो जाएंगे बहुत सारे, तो डायरेक्ट मैं NC2 यहाँ पे नहीं ले सकती, तो NC2 में से मेरे को ये MC2 जो रिपीट हुए ना, ये m जो पॉइंट कोलिनियर थे उसमें से बने हुए रिपीट हुए उनको निकाल देना, बट एक ऐड करना, क्यों ऐड करना,
क्योंकि सभी पॉइंट कनेक्ट करके एक लाइन तो बनता ना, एक लाइन को तो ऐड करना, वो भी एक लाइन सेगमेंट है ना। तो ये पॉइंट समझ में आया कि आपको ये पॉइंट क्या क्या बोल रहा, एन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है आपके पास, उसमें से एम बंदे एक लाइन में है, तो मुझे लाइंस बनाने अभी, एक लाइन को बनाना, लाइन सेगमेंट को बनाना मतलब दो पॉइंट को चूज करना। NC2 तो पूरा है, बट इसमें क्या हुआ, रिपीटेशन है लाइन सेगमेंट का, क्योंकि एक लाइन पे आने वाले बंदे एम है, तो उससे रिपीटेड लाइन्स आएंगे, तो कितने रिपीटेड लाइन्स आएंगे, MC2, तो MC2 को निकालो टोटल में से और ऐड करो एक लाइन जो कि कॉमन लाइन रहेगा उन सबका। क्लियर है कि ये पॉइंट। अभी देखो नेक्स्ट वाला, अभी ट्रायंगल वाला बात करते हैं। हमारे पास n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है एंड नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, सब डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है इधर उधर फैले हुए, तो इनसे ट्रायंगल बनाना मतलब कोई 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनाना ना, कोई 3 पॉइंट से बनता है, तो NC3। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि इसमें कुछ पॉइंट्स कोलिनियर है, तो देखो आगे कंडीशन बताती हूँ अभी। समझो भी इसमें m पॉइंट्स कोलिनियर है, हमारे पास n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स थे बट m बंदे कोलिनियर है, तो कोलिनियर का तो ट्रायंगल नहीं बनेगा ना, तो उसमें से टोटल NC3 सिलेक्शन में से जो जो तीन लाइन जो पॉइंट कोलिनियर है वो 3 पॉइंट्स को निकाल देना सिलेक्शन में से, तो NC3 माइनस MC3 होता है व्हेन यू हैव कोलिनियर सेट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एनडीए के प्रीवियस ईयर में, आपको मिल जाएंगे वो सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता रहता है वो है डायगोनल्स, अबाउट द डायगोनल। अभी डायगोनल क्या चीज है आपको पता है, क्वाड्रिलेटरल एरो, ये है डायगोनल, ये है डायगोनल जो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस को, नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस को क्या करता, कनेक्ट करता, जो क्या करता, नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस को कनेक्ट करता। तो समझो आपके पास एन साइडेड पॉलीगॉन है, तो आपको बनाने हैं डायगोनल, डायगोनल बनाने, तो टोटल NC2 तो वो सिलेक्शन हो गया लाइन सेगमेंट, बट ये लाइन सेगमेंट में ये भी तो आ रहे हैं सब, उसके साइड्स भी तो आ रहे हैं ना, ये भी आ रहे, तो ये कितने आएंगे, जितने साइड्स है पॉलीगॉन में, इसीलिए टोटल NC2 कलेक्शन में से हमें जितने साइड्स हमने लिए, जो साइड्स बने हुए उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो बचा हुआ कौन रहता है, डायगोनल्स रहता है। ठीक है, क्या बात ये फॉर्मूला समझ में आया डायगोनल्स का, NC2 माइनस n करके, वो n बता देगा, ऑक्टागॉन है, डेकागॉन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑक्टागॉन में 8 रहते हैं साइड्स, है ना, 8 वर्टाइसेस रहते हैं, डेकागॉन में 10 साइड्स 10 वर्टाइसेस रहते हैं, है ना, रेगुलर पॉलीगॉन से जितने साइड्स उतने वर्टाइसेस, तो वो बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी इसके अलावा देखो, अभी और एक मैं यहाँ पे पॉइंट बनाई हूँ आपके लिए, समझो देर आर n पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस, ये बहुत ही अच्छा है पॉइंट, ये पॉइंट नया वाला, देर आर n पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल पे है, पॉइंट्स कहाँ पे है, सर्कल पे है, जो पॉइंट्स की मैं बात कर रही हूँ वो कहाँ पे है, सर्कल पे है अभी। तो बंदा क्या बोल रहा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनेंगे, कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट करके स्ट्रेट लाइन बनेंगे ना, तो NC2। ट्रायंगल कैसे बनेंगे, डायरेक्ट NC3, बिकॉज सर्कल पे है, सर्कल पे पॉइंट से मतलब दे आर नॉट कोलिनियर, वो सब सर्कल पे है, तो ट्रायंगल भी कितने बनेंगे, NC3। क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे, NC4, कोई भी 4 पॉइंट लेके कनेक्ट कर दो, उसका क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ट्रायंगल बनाना है, कोई 3 पॉइंट लगाओ, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, कोई 4 पॉइंट को कनेक्ट करो, क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला, NC2 फॉर लाइंस, NC3 फॉर ट्रायंगल्स, NC4 फॉर क्वाड्रिलेटरल। अगर पेंटागन है तो NC5, हेक्सागन है तो NC6 फॉर सर्कल। जब पॉइंट्स प्लेन में है उसमें कोलिनियर आता है, तो कोलिनियर का केस में सब्ट्रैक्शन करना रहता है, फॉर लाइंस, फॉर लाइन में सब्ट्रैक्शन करके A1 ऐड करना रहता है, ट्रायंगल में सब्ट्रैक्ट ही कर देना रहता है कोलिनियर पॉइंट्स को, का सिलेक्शन को। ठीक है, तो वो बातें आपको ध्यान में रखनी है। डायगोनल्स में क्या हो रहा है, NC2 माइनस n करना है। क्लियर है, तो ये सभी फॉर्मूला सेट है। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, यू कैन फाइंड द टेलीग्राम चैनल लिंक provided in the description of the channel. ठीक है, you can go to the channel description, click on the telegram link and join the telegram group, and you just post their query. I would be providing you with the PDF of the स्टडी मटेरियल। दिस ये पूरा ये जो लेसन है इसके PDF स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, इंडिविजुअली आई विल बी सेंडिंग यू दिस PDF of the lecture। ठीक है, which would be really helping you out with the revision part। मैंने तो यहाँ पे रिवाइज कर दिया, अगर आपने ये लेसन अच्छे से सुना होगा तो आपका रिवीजन हो गया समझो। मैं अभी आऊंगी नेक्स्ट सेशन में विद दी problems on the permutation and combination, and there would be very good questions, so do not forget to attend, do not miss the lecture to attend, okay? So stay tuned with me on my channel, I'll be getting such important videos for you, and do not forget to subscribe to the channel, that is important for you, so that you would get all the things in one go, one place for you to revise for the right time preparation of your ND examination. Thanks for watching this video guys, I would meet you in the next session.